हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 26 सितंबर। श्री कृष्ण अपने भक्त का विशेष ध्यान रखते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसे बुद्धि देते हैं। कैसी बुद्धि? जिससे भक्त को भगवत धाम लौटने का मार्ग प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण ये बुद्धि नहीं देते कि कैसे भौतिक सुख समृद्धि बढ़ाई जाए, इसलिए लोग श्री कृष्ण की भक्ति में अधिक रुचि नहीं लेते। मुंबई, 26 सितंबर 1973। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। So don't waste your time to become happy here. In another place it is said, Padang padang jat vipadang na tesam. The same example can be given. In America, so many millions of people die in motor accident. How many? What is the statistic? You don't remember? 60,000. 60,000? No, more than that. 60. So many people die of motor accident. So, some of our students, a few months ago, he died of motor accident. The motor accident dying in America is not very astonishing, because the motors are running at the speed of 70 miles, 80 miles, 90 miles, and not only one motor car, one after another, hundreds. And if one is little slow, immediately taka. So, you cannot become happy. These boys and these girls, American, European, they have tasted all this motor car civilization. They have tasted very nicely. Motor car, nightclub, and drinking, they have tasted very nicely. There is no happiness. Therefore, they have come to Krishna consciousness. Therefore, na sato vidyati bhava, na bhava vidyati sata. Abhava. Sata. So, we are unhappy on account of our accepting asat, which will not exist. That is the description given by Prahlad Maharaj. Sada samudrigna dhiyam asad grahat. Sada samudrigna dhiyam. We are always anxious, full of anxiety. That's a fact. Every one of us, full of anxiety. Why? Asad grahat. Because we have accepted this material body. Asad grahat. Tatsadu manne suravajra dehinam. Sada samudrigna dhiyam. Dehinam. Dehina means they are Dehi, we have already discussed. Dehi means the proprietor of the body. So everyone is Dehi, either animal or human being or tree or anyone. Every living entity has accepted a material body. Therefore they are called Dehi. So Dehina, every Dehi, because he has accepted this material body, he is always full of anxiety. So we cannot be anxiety free unless we come to Krishna consciousness. That is not possible. We have to become Krishna conscious, Brahma Bhuta, Prasannatma immediately. You become anxiety free. If you don't come to the platform of Krishna consciousness, always be full of anxiety. Sada samadhavina dhiyam asad grahat hityatmapatam dhyandakupam vanangato jad harimasayita. That is Prahlad Maharaj giving us the example that if you want to get relief from this status of anxiety, sada samadhavina dhiyam, then hityatmaghatam dhyandakupam. Griha on the two. Griha means there are so many meanings, especially it is meant home. Home. Homesick. Our Vedic civilization is that drive away from home, go away from home. To take sannyas.
to take a vanaprastha, not to remain up to the last point of death as family member, grandfather did that. That is not our Vedic civilization. As soon as one is little grown up, panchasodham balang braje, he must get out from this griya on the kupam. Griya on the kupam, if we discuss, said where it may be very unpalatable. But we have to discuss from Shastra. What is griha? Griha, it is another word, it is called anganasrayam. Angana means woman. To live under the protection of wife. Anganasrayam. So Shastra recommends that you give up this anganasrayam to go to the Paramahamsa ashram, then your life will be saved. Otherwise, as Prahlad Maharaj said, griya on the kupam, if you keep yourself always in this dark well of so-called family life, then you will never be happy. Atmaghatam means you will never be able to understand spiritual life. Of course, not always, but generally you are too much attached to family life or extended family life. Extended family life, then society life, then community life, then national life, then international life. They are all beyond the form. All beyond the. So, the Prahlad Maharaj advises that you give up all this nonsense conception. Bonangato Srimāsayata. Just Bonangata means just become free from this conception, beyond the kupam conception of life. Take the broader life of Krishna consciousness. Then you will be happy. Ityatmaghatam beyond the kupam, bonangatu jad parimāsaya. Parimāsaya, the real business is parimāsaya. Bonangata. Bonangata means go to the forest. Formerly, after Grihastha life, Vanaprastha life, Sannyas life, they used to live in the forest. But going to the forest is not the main purpose of life. Because in the forest there are many animals. Does it mean they are advancing spiritual life? That is called Morkot Vairagya. Morkot Vairagya means Manki renunciation. Manki is naked, Naga Baba. Naked and eats fruit, monkey, and lives under the tree or on the tree. But he has got at least 3,000 wives. So this Morkot Vairagya, this kind of renunciation has no value. Real renunciation. Real renunciation means you have to give up the Annakupa life and take shelter of Krishna, Harimasraya. If you take shelter of Krishna, then you can give up all this ism life. Otherwise it is not possible. You will be entrapped by this ism life. So hityatmaghatam griyanda kupam bolangata harimasraya. Not to give up. If you give up something, you must take up something. Otherwise it will be disturbed. Take up. That is the recommendation. Param drishta nivartate. You can give up your family life, social life, political life, this life, that life, when you take Krishna conscious life. Otherwise it is not. Otherwise you must have to take some of this life. There is no question of your freedom. There is no question of freedom from anxiety. This is the. So here the same thing. That Tattvadarshi, those who are actually seer of the absolute soul, Athata Brahma Jignasa, as it is said in the Vedanta Sutra. Just yesterday one boy was asking me, what is the Vedanta? Vedanta, what is the meaning of Vedanta? It is very easy. Veda means knowledge.
And Anto means ultimate. The Vedanta means ultimate knowledge. हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 42। इंद्रियाणि पराणि अहुर इंद्रियभ्यः परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो अब भगवान ने 4 लेवल स्थापित कर रहे हैं, 5 हैं, लेकिन इंद्रियां जो हैं वो जड़ पदार्थ को हम नहीं गिन रहे हैं। तो एक तो जड़ पदार्थ हो गया, ठीक है, वो पदार्थ हो गया। अब इस सिस्टम की बात, इसमें सबसे पहले है इंद्रियां यानी शरीर, इंद्रियों से इनपुट जाता है। दूसरा लेवल है मन, तीसरा है बुद्धि और चौथा है आत्मा। ये 4 लेवल है, ये 4 लेवल का बिल्डिंग है। अब देखिए, अगर इंद्रियों को कंट्रोल करें, कुछ लोग करते हैं ना, इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, हम नहीं देखेंगे, हम नहीं सुनेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन मन में क्या है? मन में तो कुछ गड़बड़ है। आप देखते हैं कुछ लोग मौनी बाबा हैं, वो बैठ जाते हैं रोड किनारे, वहां पे लिखा रहता है आज मेरा मौन व्रत है। तो बात कैसे करेंगे? फिर लिख के बात करते हैं, तो फिर ये कैसा मौन व्रत हो गया? लिख के तो बात तो कर ही, मतलब मन तो बात कर रहा है, बुद्धि तो चल रही है, रात को सो भी जाते हैं तो मन तो अपना काम कर रहा है। तो सिर्फ इंद्रियों को दमन करने से काम नहीं चलेगा, फिर मन को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन मन को पकड़ने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो एक तो सिस्टम है कि नीचे से जाइए और ऊपर तक शुद्ध करिए, लेकिन वो सिस्टम ज्यादा सक्सेस नहीं होगा, इसलिए ऊपर से आना पड़ेगा। सबसे पहले आत्मा, आत्मा को क्या करना है? आत्मा को कृष्ण भक्ति में लगा देना है, सेवा में। बुद्धि का क्या करना है? बुद्धि को शुद्ध करना है। बुद्धि हो गई है दूषित, और इस दूषित होने के कारण बुद्धि कमजोर पड़ गई है। तो उसको भगवद गीता, भागवत ये श्रवण करने से, ये बार बार पढ़ने से, बार बार, कुछ लोग पूछते हैं कि कितना देर पढ़ना चाहिए, कितना भगवद गीता पढ़ना चाहिए, कितना सुनना चाहिए? जब तक बीमारी दूर नहीं हो जाती तब तक दवाई लेते रहो। जब तक बुद्धि पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाती तब तक ये जो पढ़ना है भगवद गीता भागवत का, या जो सुनना है, इसको बंद मत करिए, पूरा शुद्ध होना दीजिए। क्यों आधे में छोड़ रहे हैं? फिर बीमारी बढ़ जाएगी। एक भी वायरस रह गया शरीर में, जब कोरोना होता है सारे वायरस खत्म किए जाते हैं, एक भी रह गया वो फट से मल्टीप्लायर इफेक्ट लगा देगा और फिर पूरे शरीर को वायरस कर देगा। तो इसीलिए पूरा शुद्ध करना है बुद्धि को। तो बुद्धि को कैसे शुद्ध करेंगे? गीता भागवत पढ़ के और उसको श्रवण करके। मन को लगाना पड़ेगा कृष्ण भक्ति में। अगर मन कृष्ण भक्ति में लग गया, अब मान लीजिए आंखें कान कहीं और लगे हैं, जैसे कोई भक्त अपनी सेवा में लगा हुआ है और बाहर कहीं कोई बारात जा रही हो, बॉलीवुड का भजन या सॉन्ग लगा रहे हैं वो लोग और आवाज आ रही है अंदर, भक्त को फर्क नहीं पड़ेगा, आवाज आएगी, लेकिन क्योंकि मन पूरी तरह कृष्ण में लगा हुआ है ना, तो इंद्रियों को ज्यादा फर्क नहीं लगेगा। तो इसलिए मन को सेवा में लगाना बहुत जरूरी। तो मंत्र आयते इति मंत्र, मन को जो तरा दे या शुद्ध कर दे उसको कहते हैं मंत्र। और भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं इन्होंने क्या दिया है? हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने दिया है। तो हरे कृष्ण महामंत्र, ये तो देखा जाए तो आत्मा का पोषण भगवद गीता से भी होता है, मंत्र से आत्मा का भी पोषण होता है, मन भी भक्ति में लग जाता है। दूसरा एक बहुत सरल उपाय मन को भक्ति में लगाने का या कंट्रोल करने का। देखिए, मन को कंट्रोल करने के लिए दुनिया में करोड़ों लोग अरबों रुपए खर्चा कर रहे हैं। कहाँ हो रहा है? ये डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब मन का अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है।
मन वश में नहीं है तो ये हालत हो रही है, और कोई इलाज नहीं हो रहा है। लोग शराब पी रहे हैं, ड्रग्स पी रहे हैं, सोचते हैं मन शांत होगा, कहाँ होता है। तो लोग घूमने चले जाते हैं, वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कहाँ होता है। अगले जन्म में मन सताएगा। मन को शांत करने के गलत तरीके संसार ढूंढ रहा है, सही तरीका ऑलरेडी शास्त्रों में दिया हुआ है। क्यों इधर उधर भटक रहे, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे, दुख ही प्राप्त कर रहे हैं। हमारे एक आचार्य कहते हैं, जीव कृष्ण दास कर ले विश्वास आर दुख नहीं। सिर्फ इतना आप मान लीजिए कि आप जो है कृष्ण के दास हैं तो दुख नहीं रहेगा, क्योंकि अपने आप मन लग जाएगा। तो मन को कृष्ण की सेवा में लगाना है। एक बड़ा प्रैक्टिकल है कि सोचिए, अब आप माला करते हैं मन भाग जाता है, ठीक है, पढ़ते हैं मन भाग जाता है, फिर भी करते रहिए, मन को भागने दीजिए। फिर आप सोचिए आप भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं। ओ आज शाम को ऑफिस से आते वक्त थोड़े से फूल लेके आने, क्यों, फ्रिज में रख देंगे फूल और तुलसी, और फिर अगले दिन सवेरे घर में जो मंदिर बनाया है, फोटो है, किसी का विग्रह है, किसी का फोटो है, भगवान को बढ़िया सुंदर फूल अर्पित करेंगे। तो ये आपके मन में विचार जो आया ना, ये आपका मन शुद्ध हो गया। तो ऐसे ही सोचते रहिए भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। मन पूरी तरह सोचने समझने का पूरा वहां पे लग जाएगा। और एक बार बुद्धि शुद्ध होने के प्रोसेस में लग गई, मन को मंत्र और सेवा द्वारा कंट्रोल किया, तो आत्मा का पोषण तो हो रहा है, शरीर अपने आप जो है वो सुधर जाएगा। उसका अपना कोई स्वतंत्र इंडिपेंडेंट उसका कुछ है नहीं, वो तो मन पे आधार है। और मन अपने आप, शरीर जो है अपने आप भक्ति में लग जाएगा। और भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाइए, शरीर का पोषण भी होगा, आत्मा का भी होगा, बुद्धि भी शुद्ध होती है। तो ये 3 चीजें, गीता भागवत पढ़ना सुनना, हरे कृष्ण मंत्र जप करना, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना, और भक्तों का संग करना। मंदिर से आप दूर रहते हैं तो हफ्ते में एक बार आइए, पास में रहते हैं तो रोज आइए, लेकिन भक्तों का संग होना चाहिए। ये 4 चीजें करेंगे, आप देखेंगे आपका आत्मा शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, मन नियंत्रण में रहेगा, और जो आपका शरीर है वो हेल्दी भी रहेगा। भक्त खाते हैं अच्छा, सात्विक अच्छे से हेल्दी रहेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा। बहुत सारे वैज्ञानिक आजकल कहते हैं नींद से कितना प्रभाव पड़ता है, लेकिन आज नींद नहीं मिल रही लोगों को, क्योंकि मन अशांत है तो नींद नहीं मिल रही, नींद नहीं मिल रही तो उससे बुद्धि और डल हो रही है। आप देख रहे बच्चे आजकल पढ़ नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि रात रात भर जागते हैं पढ़ने के नाम पे, लेकिन पढ़ नहीं पाते, बुद्धि डल होती है जब आपका नींद पूरा नहीं होता, तो टाइम पे नहीं सोते। तो ये सब शरीर और आत्मा और मन और बुद्धि सबके लिए जो है कंबाइंड इफेक्ट करता है। भक्ति करेंगे ये चारों अपने अपने सही जगह पे पहुंच जाएंगे। ये पूरा जो है स्ट्रक्चर, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये पूरा स्ट्रक्चर प्रॉपर अलाइन हो जाएगा। और आत्मा के ऊपर कौन है, परमात्मा। तो ये चारों परमात्मा की सेवा में लग जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे और भगवत धाम को निकल जाएंगे। हरे कृष्ण। Nitai Gaur